ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੂਕ ਉਚਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਖਟ ਪਿੰਗ ਗਿਰਨ ਚੜ ਜਾਏ ਆਂਦ ਲਖੇ ਬਦਰੋ ਸੁਨੈ ਜੋ ਕਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਾਏ ਕਹਾਂ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਭ ਤੁਸ਼ ਹਮਾਰੀ बरन सके महिमा जो तिहारी हम ना सकत कार सिफत तुम्हारी आप लिहो तुम कथा सुधारी। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਨਿਮਰ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੱਕ ਹੱਕ ਅੰਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਬੋਲ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੱਚ ਬੋਲ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੱਕ ਹੱਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੱਕ ਹੱਕ ਅੰਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਵੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਹਾਨੇ ਪੰਜ ਚੀਜ਼ ਖੂਬ ਆਸਥ। ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੂਬ ਨੇ। ਔਰ ਖੂਬ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਖੂਬ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੂਬ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੂਬ 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 ਤੇਰੋ ਨਾਮ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਝੂਠ 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 ਦੁਨੀ ਗੁਮਾਨ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਖੂਬ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੂਬ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਨੇ। ਜਹਾਨੇ ਪੰਜ ਚੀਜ਼ ਖੂਬ ਆਸਤ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਵਲ ਫਰਿਆੰਦ ਖੂਬ ਆਸਤ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਿਆੰਦ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਖੂਬ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ। ਔਰ ਇਹ ਆਲਮ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਗਰ ਇਲਮ ਨਾ ਦਾਰਿਦ ਚੁਨਾਚੇ ਖਾਨਾਏ ਬੇਚਰਾਗ ਅਸਤ। ਅਗਰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਨਾਏ ਬੇਚਰਾਗ ਅਸਤ।
ਖਾਨਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਹੱਲ ਨੂੰ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹੱਲ ਨੁਮਾ ਮਕਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਤੂੰ ਲੈ ਲਾ, ਫਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਉਸ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਝ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹੱਲ ਹੋਏ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਏ। ਖਾਨਾਏ ਬੇਚਿਰਾਗ ਅਸਤ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਇਮ ਜ਼ਨ ਖੂਬ ਅਸਤ। ਜ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ। ਔਰਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ ਔਰਤ। ਦਾਦੀ, ਨਾਨੀ, ਭੂਆ, ਮਾਸੀ, ਇਹ ਸਭ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਏ ਮਜ਼ਾਨ ਖੂਬ ਅਸਤ, ਗਰ ਹਯਾ ਨਾ ਦਾਰਦ ਚੁਨਾਚੇ ਤੁਆਮ ਬੇਨਿਮਕ ਅਸਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਹਯਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਕੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਜਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਝ ਹੈ, ਪਕਵਾਨ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣੇ ਹੋਣ, ਸਾਗ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੋਇਮ ਤਵੰਗਰੀ ਖੂਬ ਅਸਤ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਮੀਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਇਮ ਤਵੰਗਰੀ ਖੂਬ ਅਸਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਵੰਗਰੀ ਅਮੀਰੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਗਰ ਸਖਾ ਨਾ ਦਾਰਦ ਚੁਨਾਚੇ। ਅਗਰ ਅਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਾਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਾਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਅਬਰੇ ਬੇਬਾਰ ਅਸਤ। ਉਹ ਇੰਝ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਪਸ਼ ਹੋਏ, ਉਹ ਲੋਕ ਅਡਿੱਕਣ ਕਿਤੇ ਮੀਂਹ ਵਸੇ, ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾਂ ਆਉਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਟਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਢਾਸ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਮਾਸ਼ਮ ਮੀਂਹ ਵਰਸੇਗਾ ਤੇ ਬੂੰਦ ਇੱਕ ਨਾ ਪਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਮੀਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਹੋਵੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ। ਕਾਦੀ ਅਮੀਰੀ? ਅਮੀਰੀ ਹੈ ਦਿਲ ਤੋਂ। ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਬਾ ਅਕਲ ਅਸਤ ਨਾ ਕੇ ਬਸਾਲ, ਤਵੰਗਰੀ ਬਾ ਦਿਲ ਅਸਤ ਨਾ ਕੇ ਬਾਮਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਮੀਰੀ ਨਾਪਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਨਾਪਣੀ ਹੈ, ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। 13 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਜਾਈਏ। ਤਵੰਗਰੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਹਾਰਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਖੂਬ ਅਸਤ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਖੂਬ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਗਰ ਅਦਲ ਨਾ ਦਾਰਦ ਚੁਨਾਚੇ ਚਾਹੇ ਬੇਆਵਸਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਦਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਝ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿਆਸੇ ਹੋਣ ਤੇ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਖੂਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜਲ ਛਕ ਕੇ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ? ਖੂਹ ਹੈ, ਲੱਜ ਹੈ, ਡੋਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਅੱਗੋਂ ਨਿਆਂ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਫਿਰ ਪੰਚਮ ਫਕੀਰੀ ਖੂਬ ਅਸਤ। ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜਾ ਖੂਬ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਫਕੀਰ ਨੇ, ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ,
फकीर ये नहीं कि लम्मा चोला, किसी ने भी धार्मिक लिबास पाया है, अरबी फारसी में फकीर कह देंगे ने, तो साढ़े इधर संत कह देंगे ने, महात्मा कह देंगे ने। वो कहता है पंचम फकीरी खूब आस्त, फकीरी तो खूब है, खूब है। और जेड़े उपरले चार ने ना, ये सारे फकीर के कदमां ते झुकते हैं। पुत्र नूं कह देंदी है मां, बेटा बाबा जी नूं मत्था टेक। जिहड़ी औरत है वो शरधा नाल सेवा करदी है, क्यों? मेरा परिवार सुखी बसे, सुख शांति बनी रहे। अमीर टेकदा है मत्था, मेरा चलदा रहे कारोबार, चढ़दी कला दे विच वो भी झुकदा है। तो बादशाह झुकदे ने, साड़ी बादशाही बनी रहे। फकीर सब तो उपर है। पर यह कहता पंचम फकीरी खूब अस्त, गार सबर ना दार्द चुनाचे, गोले बेबू अस्त। अगर फकीर दे अंदर सबर नहीं है तो इंज है जिवें ए फुल ने हर वेले खिड़े ही रहंदे ने, कई महीनों तो ये खिड़े ने, पर खुशबू ते विच कोई नहीं। फकीर दे अंदर सबर होना चाहिए। तो कलगीधर दा जिन्ना सबर है, ये सबर की इंतहा है, सबर की आखीर है। वो कहता है कि बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह ने लेकिन फकीर भी ने, दरवेश भी ने। सो आओ माछीवाड़े दे जिथे वो जंड दे हेठ बिराजे ने, आपां उत्थे रहन दईए। अज इतिहास जिहड़ा है छोटे साहिबजादियां दा शुरू करिए मात गुजरी तो। माता गुजरी जी दोनों साहिबजादियां नूं नाल लैके बाबा कुम्मा, क्योंकि पहले उन्होंने कुम्मा कहते सन, पर पंथ ने क्या बाबा कुम्मा, इन्हें सेवा की, दिलों सेवा की, जो कुछ ये कोल सी इन्हें अर्पण कर दिता है। हुकूमत तो नहीं डरिया, तो क्या उहदी कुटिया दे विच रात कट्टी है। सवेरे ही जाता है कि भैन लक्ष्मी मेरे घर मेहमान आए ने, तो उन्होंने प्रशादा जरूर छकाना है बना के, ते हुणे चल। वो जिहड़ी लक्ष्मी है वो आके प्रशादा तैयार करती है, छकते ने प्रशादा। गंगू भी आ जाता है, चले जाता है अंदर। जब माता जी तुरन लगते हैं उतों, दानी सुभाव वो लक्ष्मी नूं कंगण देड़ा देंदे ने कि बेटा तू गुरु दे लाला नूं प्रसाद छकाया है, तेरा भला होवे, ऐ मेरी इच्छा है, तू इनू पा लै। बेचारी लेना नहीं चाहती, लेकिन माता जी ने कहा नहीं बेटा तू लै। तो मोहरां वाली थैली दे विचों कुछ मोहरां लैके जद कुम्मे दे हाथ ते रखते ने, रो उठदा माता जी मैं की सेवा की और तुसी की कर रहे हो। नहीं बेटा तुम गुरु दे लाला वास्ते बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ है तेरा, तू देख जाके लैके आया है लक्ष्मी नूं प्रसादा छकाया है, तेरा भला होवे। बस ये दोनों देख लेंदा पापी गंगू माता जी दे कोल मोहरां दी थैली ते गहणियां दी गुथली, लोभ विच आ जांदा है, अपने घर नूं लै तुरदा है। मैं शायद दस्सिया सी, अंधेरे होए घर जांदा है, अंदर छल है, कपट है, पाप करदा है ना जिहड़ा बंदा, वो हर वेले डरदा रहिंदा है किते पता ना चल जाए, पता ना चल जाए। हुण छुपे रहिंदे ने पाप कीते। कबीर जेते पाप किए राखे तले दुराए, प्रगट पाए निदान सब जब पूछे धर्म राय। वो जिन्ने पाप किए लुका के रखदा है,
तो कहते आखिर में प्रगट हो जाते हैं, सजा मिलती है पापां की। वो एक मज़ार है तो उसकी छोटी छोटी बाउंड्री वाल है, कोई बहुती वड्डी चार दीवारी नहीं है। माता जी तुसी इस कंध ते बैठ जाओ तो मैं देख के आना अगों माहौल। बेचारे माता जी ते दोनों बच्चे उस कंध ते बह जाते हैं। हुण ये देखता थोड़ा जिहा अंधेरा हो जाए और माता जी बैठे हुए ने। वो फकीर बाहर आउंदा जिहड़ा उत्थे सेवा करदा सी, ਉਹਦੇ लफ्ज़ के माई तुसी इत्थे क्यों बैठे हो। हुण माता जी की दसन, मूँह निकलिया बस एवें ही बैठे हैं, कोई गल नहीं हैगी, एवें ही बैठे हैं। कहंदा ठीक है, अंदर चले जाता है। ये फिर घर लै जाता है थोड़े नेरे होए माता जी नूं ते बच्चियां नूं। ये पता मैं क्यों दस्सिया है, मैं टीवी दे विच एक दफ़ा सुनिया सी 2-4 साल पहला कि जिथे माता जी बैठे सन और रसना तो कहा सी कि एवें बैठे हाँ। फिर जदों साहिबजादियां नूं इस तरह सजावां मिलियां ना तो नगर विच बहुत कुछ होण लग पिया। फिर कोई रब दा प्यारा आया, उन्हें कहा इत्थे कोई माता जी ते बच्चों की यादगार विच कुछ बनाओ, रोज़ हरजस होया करे। फिर कहते उत्थे गुरुद्वारा बनाया है, उहदा नाम एवें साहिब ही रखिया, जो माता जी की रसना तो निकलिया सी ना, उही नाम रखिया एवें साहिब। घर लै जाता है, रात चोरी कर लैंदा है, सवेरे दिन का चढ़ा जद हुंदा है फिर लालच दा मारिया चौधरी दे कोल जांदा है कि चौधरी मौका हाथ विच आया है, सरकार कोलों इनाम लईए। वो कहंदा काहदा इनाम, कहंदा माता जी ते दोनों साहिबजादे मेरे घर विच ने, ते दस के आपां पुलिस नूं ते इनाम लैने आ। वो भी लोभ दे विच आ जांदा है और आके चौधरी की करदा है, कुछ 2-4 बंदियां नूं उत्थे आके जिथे इहदा रहायश है सामने बिठा देंदे ने कि किते चले ना जान, ते आप चले जांदा है मोरंडे चौधरी ते ये गंगू। उत्थे जाके कहंदा है थानेदारां नूं कि मेरे कोल महाराज दे माता जी ते बच्चे, मैं तुहानूं 10 पा भी है तो मैनू इहदा इनाम दिओ। कहंदे पहले उन्होंने लै आईए फिर तैनूं इनाम दवा देंगे। जानी खां ते मानी खां दोनों नाल को 2 सिपाही 2-4 होर होणगे, ये 2 थानेदार ने आउंदे ने ते उस वेले हैरान होवोगे। बच्चे पूछते ने माता जी ये सानू इस तरह का घेरा क्यों पाया है। तो माता जी कहते लाल जी ये भी कोई रब की रजा है, कोई नहीं तुसी वड्डा हौसला रखो। आ जाते ने दोनों थानेदार ते नाल उन्हां दे सिपाही, कहन लगे चलो गिरफ्तार करते ने उन्होंने। माता जी देखते ने गंगू वाल, माता जी तो वड्डा ब्रह्म ज्ञानी कौन होएगा। तुसी पुछोगे किवें। बाबे बकाले दे विच जिथे गुरु तेग बहादुर साहब जी ने भोरे दे विच 26 साल के करीब तपस्या की ते महाराज लिखते ने वो तपस्या कले मेरे पिता जी ने नहीं की। तात मात मोर अलख आराधा बहुविध जोग साधना साधा। मेरे माता ते पिता दोनों ने अकाल पुरख की जिहड़ी है बंदगी की। कोई कुछ दिन ही किसी संत का संग कर लै तो रंग चढ़ जाता है। तो माता जी ते महल ने गुरु तेग बहादुर साहब जी दे। माता जी का निर्मल हिरदा कोई बद दवा नहीं देंदा,
पर जदों रसना दे उत्ते परमात्मा ही आके बैठ जावे तो फिर प्रभ जी बसां साध की रसना। माता जी की रसना तो बोल निकले गंगू माड़ा कीता है। ये गुरु दे लाला नूं जिहड़ा तू पकड़ाया है ना, धन दे लोभ करके पकड़ाया है। याद रखी गंगया, यही धन तेरी मौत का कारण बनेगा ते कमला होके मरेगा। माता जी की रसना तो ये बोल निकल गए। हुण जानी खां ते मानी खां ने तिन्हां नूं जिहड़ा है बिठा लिया है रथ दे उत्ते। चलो कविता तो बाद में सुनानी सी, मैं पहले सुना देना कि किसी कवि ने बहुत कमाल कीती है। सतगुरु जी के बच्चों नूं दोनों नूं हंस दे नाल तशबीह दिती। तो आओ उस वेले दी कविता नूं सरवण करो जदों उन्हां नूं खड़ रहे। एक जोड़ा हंसां दा तुरिया नाल सिपाहियां जावे। एक जोड़ा हंसां दा तुरिया नाल सिपाहियां जावे। आके दो सिपाहियां ने माता गुजरी नूं सीस नवाए। माता तेरियां लाला नूं सूबा विच सरहंद बुलाए। जो हुक्म है सूबे दा, जो हुक्म है सूबे दा, ओह कह के इंज सुनावे। एक जोड़ा हंसां दा तुरिया नाल सिपाहियां जावे। एक जोड़ा हंसां दा तुरिया नाल सिपाहियां जावे। दिल शेरां वर्गे ने ना ओ डरदे ना घबराउंदे। पयो खिड़ खिड़ हसदे ने योधे अपना मन परचाउंदे। खुश होना जोधियां दा, खुश होना जोधियां दा, लोरी दे के मौत सुलावे। एक जोड़ा हंसां दा तुरिया नाल सिपाहियां जावे। एक जोड़ा हंसां दा तुरिया नाल सिपाहियां जावे। आदर नाल सिपाहियां ने जी तिन्ने रथ दे विच बिठा ले। आदर नाल सिपाहियां ने तिन्ने रथ दे विच बिठा ले। खेड़ी पिंड दियां लोकां ने झुरमट चार शफेरे पा ले। पयो आखण गंगू नूं, पयो आखण गंगू नूं, पापी जालम जुल्म कमावे। एक जोड़ा हंसां दा तुरिया नाल सिपाहियां जावे। अगे रल के भरदियां ने पानी खूहे ते मुटियारां। एक दूजी नूं दसण आपो अपनियां विचारां। दो चन्न पै जांदे ने, दो चन्न पै जांदे ने, चन्न लो जिन्ना तो छावे। एक जोड़ा हंसां दा तुरिया नाल सिपाहियां जावे। पहली कहंदी दूजी नूं नी जरा नाल ख्याल पछाणो। ए तां हसन हुसैन ने साडे खास पैगंबर जानो। हसन ते हुसैन मुहम्मद साहब दे दोते ने ते कारबला दी जंग दे विच ये शहीद होए ने। जिस दिन ये शहीद होए सन उस दिन नूं मुख रख के अहले इस्लाम उस दिन बहुत अपने शरीरां नूं कष्ट दिंदा है कि साडे नबी शहीद होए सन। बीबी फातिमा जी दे पुत्र सन। तो ये कहंदी है पहली कहंदी दूजी नूं नी जरा नाल ख्याल पछाणो। ए तां हसन हुसैन ने साडे खास पैगंबर जानो। नाल बीबी फातिमा
नाल बीबी फातिमा ए जेदा दुनिया जस पई गावे। एक जोड़ा हंसां दा तुरिया नाल सिपाहियां जावे। दूजी कहंदी तीजी नूं नी श्री राम चंद्र जी जाता। ये तां बेटे दशरथ दे जापे नाल कुशल्या माता। ये पहचान अयोध्या नूं, ये पहचान अयोध्या नूं सारी नगरी जस पई गावे। एक जोड़ा हंसां दा तुरिया नाल सिपाहियां जावे। तीजी कहंदी चौथी नूं नी दुष्टां खेड़ी पिंड तो आंदे। तीजी कहंदी चौथी नूं दुष्टां खेड़ी पिंड तो आंदे। श्री तेग बहादुर दे छोटे पोते दोवें जांदे। गुरु तेग बहादुर दे छोटे पोते दोवें जांदे। ये तां विछड़े बापू तो, ये तां विछड़े बापू तो नाल माता गुजरी जावे। एक जोड़ा हंसां दा तुरिया नाल सिपाहियां जावे। एक जोड़ा हंसां दा तुरिया नाल सिपाहियां जावे। आदर नाल ये आखिरी बंद है। एक पल विच पहुंचे ने सिद्धे विच सरहंद दे आके। एक पल विच पहुंचे ने सिद्धे विच सरहंद दे आके। बंद कीता तिन्हां नूं ढिलों ठंडे बुरज विच लिया के। कौमां ओहो ही जग ते जिउंदियां ने ते जेड़ी कौम दे बंदे दलेर हुंदे। इट्टां उसे ही बेरी नूं वजदियां ने ते जिस बेरी दे मिठड़े बेर हुंदे। कौन पुछदा कावां ते गिद्दड़ां नूं बंद पिंजरियां दे विच शेर हुंदे। बच्चा शेरनी दा एक लख वर्गा ते लाए सूरियां जम जम ढेर हुंदे। एक पल विच पहुंचे ने सिद्धे विच सरहंद दे आके। बंद कीता तिन्हां नूं ढिलों ठंडे बुरज विच लिया के। एक मौसम सर्दी दा, एक मौसम सर्दी दा ठंड पो दी रात सतावे। एक जोड़ा हंसां दा तुरिया नाल सिपाहियां जावे। एक जोड़ा हंसां दा तुरिया नाल सिपाहियां जावे। माता तेरियां लालां दी सारी दुनिया शोभा गावे। माता तेरियां लालां दी सारी दुनिया शोभा गावे। तो इस तरह ये तिने जेड़े ने माता जी ते दोनों साहिबजादियां नूं सूबे सरहंद ने ठंडे बुरज दे विच कैद कर दिता। इन्नी उचाई सी ओदी, किसे वेले कहते लागों नदी वगदी हुंदी सी ते जद उत्ते बैठ जांदा सी ना ये सूबा ते हवा टकरा के इस पानी दे नाल ते ये ठंडियां करदी सी इनू। अज उस ठंडे बुरज विच माता जी ते साहिबजादे बैठे ने। ताकीद है कि कोई भी इन्हों जल पानी ना दवे। इधर जानी खां ते मानी खां दे मन दे विच कुछ गल आई। हुण थानेदार ने पुलिस वाले ने किया कि माता जी ने जेड़ा किया है ना कि धाने ने लुकाया है, ते धाने ने जरूर माता जी का लुकाया है। तो पहला ये कोलों जाके आपां वो ते लईए।
जिवें करते ने भी आपां दोवां दा ही अद्धो अध। ये दोनों जानी खां ते मानी खां आउंदे ने ते बुलाउंदे ने इस गंगू नूं कि जरा बाहर आ। सोचदा मैनूं शायद इनाम देण वास्ते आए ने। कहंदा इनाम देण वास्ते आए हो? कहंदे हाँ, जरा बाहर आ तेनूं इनाम दे देंगे। बाहर लै जांदे, नवेकला थोड़ा जिहा। कहंदे भी सच दस माता जी दा धन कित्थे है? एकदम सोचदा है, कहंदा नहीं नहीं माता जी का कोई धन नहीं हैगा। वो कहंदे माता जी ने आख्या कि तू धन उन्हां दा चुराया है। कहंदा नहीं नहीं माता जी झूठ बोलते हैं। एक मारते ने जोर दी थप्पड़। वो गुरु दे ते सिख नहीं झूठ बोलते तो गुरु दी माता किवें झूठ बोल सकती है? सच दस धन कित्थे है? जदों फिर अपनी पूरी भाषा दोवें वरतते ने ना, खूब घटापा चाढ़ते हैं, तो फिर कहंदा हाँ मैं दसां कित्थे है। तो जिहड़ा बचन सी ना माता जी का वो सच हो जाता है, फुर जाता है। इहनूं चेता भुल जाता मैं कित्थे रखिया। कहंदा इत्थे है। वो इत्थों काली काली पुटदे ने, कुछ नहीं निकलता, फिर कुटदे ने, फिर कहंदा इत्थे नहीं इत्थे है, इत्थे नहीं इत्थे है। जानी खां ते मानी खां दी मार खांदा होया है गंगू पापी नरकां नूं चले जाता। हुण वारी आ गई है मोती महरा जी दी। पता चलिया क्योंकि ये हिंदू कैदी जिहड़े सन ना उन्हां दी रसोई बनांदा सी और बड़ा श्रद्धालु हिरदा सी। इहदा शरधा नाल भरिया होया, गुरसिखां दी सेवा करन वाला। अपने घर दुध गर्म करदा है, नाल 2 गिलास लैंदा है कि मैं दुध पिला के आवां। ते जब उत्ते चढ़न लगदा है ना गुरज दे, ते सिपाही रोक लैंदा है, कित्थे चले आ? कहण लगा मैं बच्चियां नूं ते माता जी नूं दुध गरम गरम पिलाउण चलिया, सर्दी बड़ी है, कुछ खाधा पीता नहीं उन्होंने। वो कहंदा देख मेरा कोई माता जी ते बच्चियां दे नाल वैर नहीं हैगा, मैं भी बच्चियां वाला वां। पर मजबूरी की है कि जे पता चल गया तो नौकरी भी गई तो सजा भी तगड़ी मिलेगी। इस करके मैं तेन ऊपर नहीं जान दे सकता। बेचारा फिर वापस आ जाता है, मन ना बड़ियां सलामां करता कि की करा। फिर उन्हें चेता आ जाता है एक चीज़ का कि जदों गुरु अर्जन देव जी महाराज चंदू की हवेली दे विच सन ना, ते हुक्म सी कोई जल पानी ना छकाए, ते चंदू की नूंह जिहड़ी सी वो मिठा जल ते नाल चूरी चारी कुट के लैके गई सी। ते अगों सिपाहियां ने लंघन नहीं सी दिता कि तेरे सहुरे का सुभाव सख्त है, अंदर नहीं जान देना। उन्हें जिहड़े थोड़े बहुते गहणियां का माड़ा जिहा लोभ दिता। पंजाबी की कहावत है तेल तमा जिसनों मिले तुरत नरम हो जाए। क्या कि फिर तू छेती आ जावी? कहती मैं आ जाऊंगी छेती। चेता आया तो घर वाली नूं कहन लगा साडे कोल थोड़ा बहुता टूम छल्ला है ना? वो कहती हैगा। कहंदा फिर अज दे दे, भले दे कारज उत्ते ला देने आ। माता जी ते बच्चे जिहड़े ने अगर साडे भाग चंगे होण, सानू ये सेवा मिल जाए उन्होंने कुछ सिखाउण दी, टूम छल्ले हाँ की करने ने। घर वाली भी होई गुरसिखां दी सेवा वाली सी, वो अपने टूम छल्ले जिहड़े 2-4 सन फड़ा देंदी है, दुध दोबारा गर्म कर दिए, तो जब फिर लैके जाता है इंज कह लो कि माता जी अकाल पुरख कह लो, ओदी भावना नूं भाग लाउंदा है। वो कहंदा तू फिर आ गया? वो कहंदा ऐ थोड़े जे लै ला, मेरे को कुछ है ते बाकी दुध ही पिलाना है, केड़ा पता लगना है। कहंदे ने ओदी भावना नूं भाग लग्या, वो थोड़ा जिहा लोभ विच आ गया, उन्हें गहने देते, उत्ते गया ते माता जी कहंदे कौन?
कहने लगा माता जी मैं रसोईया वां मोती। माता जी कहते एक रसोईए ने सानू इत्थों तक पहुँचा दिता तो हुण दूसरा रसोईया हाथ जोड़ के कहा माता जी इंज ना करो, मेरे उत्ते तुसी भरोसा करो। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਨਾਲ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਓ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੁੱਧ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਅੱਗੇ ਗੜਵੇ ਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਲਾਲੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਿੰਨਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ੀ ਦਹਿੰਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਹਿੰਦ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਾਲੋ ਦੁੱਧ ਪੀਓ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ मेरी इच्छा नहीं है। रो पिया माता जी तुहाडी इच्छा तो नहीं है, कृपा करो मेरी इच्छा नूं पूरिया कर दिओ। छको तुसी छकोगे मैनू कुछ तरवास होएगी। देख के हिरदा ते जब माता जी ने दुध छकिया ना तो माता जी की रसना तो एक बोल निकलिया। माता जी पूछते बेटा तेरा नाम की है? कहना जी मेरा नाम मोती है। तो माता जी ने जो किया ना वो अमर बोल अज भी लिखे ने उत्ते, धन मोती जिन पुन कमाया गुर लाला ताई दुध पिलाया। धन मोती जिन पुन कमाया गुर लाला ताई दुध पियाया। मोती जब तक संसार रहेगा ना तेरा नाम मोती की तरह चमकदा रहेगा। माता जी दे ये भी बचन सत ने जेड़े उत्थे गेट बने ने। एक गेट बाबा मोती राम दे नाम का भी बनया होगा। खैर समा अपनी चाल ना चल गया है। फिर वारी आ गई चिणन दी कंधां दे विच जिहड़ा इतिहास है साडा अज दा। ठंडे बुरज दे विच बैठे ने, दो तीन कहंदे पेशियां होईयां ने। फिर वड्डी मीटिंग हुई, सारे बुलाए कि इन्हों सजा देनी। एक कहते कुटल नीति, चाणके नीति दे विच एक है कुटल नीति तो काम लै जाना, छल कपटाली। नवाब मलेरकोटला नूं भी बुलाया, पूरी सभा लगी। पता मलेरकोटला नूं किस वास्ते बुलाया? क्या कि देखो तुहाडे सके भरा ते भतीजे नूं इन्हां ने मारिया है। भतीजे नूं जंग दे विच मारिया है, भरा तुहाडे नूं इन्हां दे पिता ने तीर अख दे विच मार के मारिया है। ते ये उन्हां दे हुण बच्चे ने, तुसीं इन्हां तों बदला लो। वो जिहड़ा शेर खां वाकई ही शेर वर्गा उहदा हिरदा है। कहन लगा नवाब देखो बदला लेना होगा तो लेंगे बाप से। ठीक है मेरे भरा नूं मारिया है, किते मिल जाएगा गुरु गोबिंद सिंह दे दो हाथ करांगे। बदला लेना होगा तो लेंगे बाप से, खुदा महफूज रखे हमें इस पाप से। ये तो पाप है, शीरखोर बच्चे, दुध पीने वाले बच्चे जे तुसी इन्हां नूं कहंदे मारना, ये तो पाप है। ये तो कुरान भी आग्ञा नहीं देंदी, मासूमां दा खून नहीं आग्ञा देंदी कुरान। ये तो जे मासूम ने
उस तरह तो ये जिहड़ा हैगा ना सूबा सरहंद, जदों इहदे सामने बच्चे आए सन तो इहदी रसना तो निकलिया सी ई मासूम मस्त, ये तो मासूम ने। उन्होंने नहीं सी पता कि वड्डे होणगे, उन्हें क्या शायद ये तो बिल्कुल मासूम ने, ई मासूम मस्त। पर एक पापी जिन्हों पंथ ने झूठा आनंद किया, एक कहन लगा महाराज ठीक है मासूम मस्त ने, ई मारस अस्त, ये सप दे बच्चे ने ते सपोलीए ने, इन्हों हुणे कुछ लो। ये सुच्चा आनंद ने जिहड़ा है बेड़ी बिठाई है, शायद उहदे अंदर दया आ जाती। खैर इन्होंने इस तरह फिर फितवा ला दिता। हुण डर गया थोड़ा जिहा सूबा सरहंद। वेखो मस्कीन जी ने एक गल कही है, जिन्हां दे अंदर द्रवदे नहीं ना ते बाहरों लिबास ही कला हुंदा है, वो इन्ने क कठोर हो जाते ने, उन्हां तो खतरा ही खतरा है हर एक नूं। ये जिहड़ा झूठा आनंद सी ना, संध्या तरपन गायत्री सब कुछ पढ़ता है, पूजा करता है, तो जिहड़ा काजी वो भी 30 दे 30 वो जिहड़े रोजे भी रखता है, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता है, कुरान की तलावत भी करता है, हिरदा कठोर है। तो जिहड़ा सूबा सरहंद है जां नवाब मलेरकोटला है, ये तो कदी कदाई किते रब की इतरा कोल जाते सन मस्जिद दे विच। पर सुनिया इन्हें कहा कि जिहड़ा बच्चों का मासूम का खून डोलना है ये पाप है, कुरान आग्ञा नहीं देती, ये पाप नहीं हो सकता। तो पता काजी पापी ने की आख्या, जनाब असी खून डोलते ही नहीं, इन्हों नीहां च चिण दिओ, खून डुलेगा ही नहीं। हद हो गई। कहते ने जिस वेले फिर बच्चों को कहा गया आओ ते चुक जो सूबे के अगे, चुक के सलाम करो, अंदर जाओ। तो उन्होंने वड्डा गेट जिहड़ा है उहदे विच एक छोटा असी देखते हैं बारी रखी होंदी है, उन्हों का ख्याल सी इंज सिर झुका के अंदर लंघणगे। पर दोनों साहिबजादियां ने पहला चरण अंदर कीते, जुत्ती दिखाई कि जिहड़े तू सुख देने ने ना, ये तो साडी जुत्ती की नोक ते भी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अंदर लंघ के भी फतेह गजाई है, बथेरा समझाते जिस तरह समझाईदा है, पर साहिबजादियां नूं की समझाना है। सुच्चा आनंद कहन लगा बच्चिओ तुहाडी अजे उम्र छोटी है, तुसीं अजे संसार दा की वेखिया है। कहंदे तेरी उम्र किन्नी कुछ होएगी? कहंदा होएगी 50-60 साल दे विच। कहंदे असीं ते सफल हो चले हाँ इन्नी उम्र दे विच ही, असीं ते इन्नी उम्र विच ही सफल हो चले हाँ। जे रब दी जात तो बिना, धर्म तो बिना जीवना जिहड़ा है वो काहदा जीवना है? कुछ भी नहीं हो जीवना। जहाँ ते कह कि मौत आनी नहीं है, कहता मौत तो आनी है, फिर कहते होर 50-60 साल अन्न गंदा करके दे जीना, तो ऐसे जीवन का की फायदा है? बाणी च एक वचन है, एक निमख जो सिमरन में जिया, जानो कोट दिन सलाख सदा थिर थिया। सवाल जवाब होए, आखिर ते कहता इन्हां नूं नीहां दे विच जिंदे चिण दिओ, शायद मन जाणगे। जद नीहां दे विच चिणन लगे, फिर ऐसे पापी ने कि नींह जिहड़ी है ना, कहंदे कंध साली होनी चाहिए है सीधी, अगर गोडा आंदा है अगों चपणी आउंदी है तो वह छाड़ दिओ। साहिबजादे अडोल ने, कंध छातियां तक गई है, कुछ साह रुकने शुरू हो गए। तो अचानक देखिया कि वड्डे भरा दियां अखां च कुछ अथरू आ गए। छोटे वीर कहन लगे, वीर की गल तेरियां अखां च अथरू? कहंदा अथरू वो नहीं जो तुसी समझदे हो। अथरू इस वास्ते आया है कि आया तो मेरे तो बाद विच सां ते चलिया मेरे तो पहले ही चलिया।
ये ख्याल करके मन भिजया है। आखिर ते कहने ने कंध जिहड़ी है जद छातियां तक गई, दोनों के साह रुक गए तो फिर कंध थले डिग पैंदी है, धरती कंब गई। ऐसा पाप होया। हुण इत्थों सीधा गल नहीं है, क्योंकि कलगीधर जी ने भी जफरनामे च किया है कि मेरे बच्चों को कोह के मारिया। थोड़ी देर बाद साहिबजादियां नूं होश आ जाती है, कहंदे ते अजे भी जिंदा ने, कहंदे जिंदा ने, इन्हां नूं पुछो इस्लाम कबूल करते ने। तो साहिबजादे ने कि इस्लाम कबूल करना सी। उन्होंने होश विच लिया के फिर कहा कि जे तुहानू असी छड्ड दईए तो की करोगे? कहते जंगल विच जावांगे, पिता जी नूं लभांगे कित्थे है, अपने सिखां नूं इकट्ठियां करांगे ते फिर चल के इत्थे आवांगे। आ जिहड़ा सूबा है ना, इहदे 2 टोटे करांगे। वो कहते देख लो महाराज, कहते जे ना ये काम एक बार हो सकिया, कहते दूसरी बार फिर आ जावांगे, करांगे ये 2 टोटे। इतिहास दसदा है कि बच्चों की रसना तो बोलिया होया बोल सत होया। फतेह सिंह ने कहते ने एक होर गुरसिख जो सरहंद नूं फतेह किया, उसका नाम फतेह सिंह सी। उन्हें किरपान दे नाल सूबे दे 2 टोटे किए सन। खैर सारी गल खत्म हो जाती है। हुण क्या इन्हों जवा करो, कोह के मारो, जिवें बकरे नूं कोहंदे ने। कोई भी जलाद इस तरह का पाप करने को तैयार नहीं है, पर कुदरत जो दा हुक्म, शाशल बेग ते बाशल बेग 2 जलाद ने, ते इन्हां दा मुकदमा चलदा है। जद इन्हों पुछया कि तुसी मान जाओ, कहते एक शर्त मानते हैं कि अगर तुसी साडा मुकदमा जिहड़ा बरी कर दोगे। सूबे सरहंद नूं कहा कि यह 2 जलाद ने और ये स्वार्थी ने, तुसी इन्हां दा स्वार्थ पूरा कर दिओ, ये तुहाडा कारज कर देणगे। की स्वार्थ है इन्हां दा? कहते मुकदमा चलदा है, बरी कर दिओ। वो कहते बरी। फिर इन्हां दोनों ने साहिबजादियां नूं लटा के हाथ में छोटी कटार लैके छाती ते गोडे रख के इस तरीके दे नाल सारा रग नूं कट्टिया है। दोनों साहिबजादे जिहड़े ने शहादत दा जाम पी गए ने। माता का हिरदा पता तो चल गया होएगा, पर वो कहते 3 धन जनेंदी माँ आए सफल से। माता जी धनता दे जोग ने वड्डे सबर दे विच पानी नूं जर लिया है। उत्थे माता जी ने भी अपने सुआस जिहड़े ने छड्ड दिते ने। इंज सारी खेड खत्म हो गई है। हुण इन्हां बच्चों का संस्कार कौन करे? गुरु तेग बहादुर साहब जी का जिवें धड़ सी ते सीस इत्थे आ गया, ते वो तो ठीक कला गुरु दी वरती लखी शाह बनजारा जी ने संस्कार कर दिता। उदों भी हुकूमत कहती सी, लेकिन इत्थे की है, इत्थे फिर महाराज ने सेवा झोली च पाई टोडर मल दे। हुण वो भी तो हिंदू ही है। जहाज चलते सन उहदे, उन्हें आके बेनती की कि साहिबजादियां ते माता जी का संस्कार मैनू करने की आग्ञा दिओ। उन्हें क्या मिल सकती है, पर जगह मुल लैनी पैगी। उन्नी दिनी जगह ते संस्कार करना। कहते हुक्म करो कितनी माया चाहिए है? कहते नहीं माया की करनी है, बस जिन्नी तुहानू जगह चाहिए उन्नियां ही मोहरां जिहड़ियां ने ना रख दो। टोडर मल कहता मेरा भावें कुछ ना रहे कलगियां रह, मैं तेरी माता ते बच्चों का जरूर संस्कार करांगा। बच्ची का विआह भी सी, ओदी दा बेचारी दा कुछ गहने गुणे बनाए सन।
कहते जब मोहरां लैके आया तो पापियां की नीत बदल गई। कहते इस तरह मोहरां नहीं, खड़े कंडे रखनियां। बेचारा घर चले जाता। बच्ची कहती पिता जी की गल, कहानी दसदा। कहती छड्डो मेरे गहणिਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ भी वेच दिओ, तुसी उन्हां दा जगह करो। इंज फिर मोहरां जड़ियां रख के ते माता जी का ते बच्चियां का संस्कार किया ज्योति सरूप गुरुद्वारा साहिब विखे। सो ये दास्तान है शहीदां दी। कहते ने शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, हयात तो हयात है वो मौत भी हयात है। जिहड़ी शहीद की मौत है कौम की जिंदगी है। कहते जिन्ना चिर वो जिंदगी रहिंदी है उन्ना चिर भी वो सब कुछ करते हैं, वो जान तो बाद भी अमर हो जाते हैं। वो अपनी उस तरह ही सेवा करते रहते हैं। सतगुरु कृपा करन। साहिबजादियां दा ते माता जी का इतिहास सुनाते हैं। होइयां बेअंत भुलां की खिमा बख्श देनी जी। सतगुरु कृपा करन। असी भाई पिंदरपाल सिंह जी का एक बोल कह के मैं माफ़ी मंगदा। वो कहते सी असी जे कहिए कि अजीत सिंह ते जुझार सिंह वर्गे जां जोरावर ते फतेह सिंह वर्गे बन जाइए ये तो मुश्किल है। वो भले वो कम से कम उन्होंने वर्गे स्वरूप ही बना लो। सतगुरु कृपा कर नितनेम दे धारनी हो जो, बाणी दे धारनी हो जो, साबत सूरत हो जो। सतगुरु कृपा करन, मेहर करन। आओ फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल। वाहिगुरु।